Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now in this video I'm going to start a new chapter that is algebraic expression from the book of ML Agarwal. So here the first exercise 8.1. From the algebraic expression using variables, constants and arithmetic operation, first one 6 more than thrice a number x. Okay, so as here 6 more than thrice, thrice means 3 into the given number. So as here the number is here x, so 3 into x, that means 3x. Now next 6 more than, so plus 6, so 3x plus 6, that is your answer. Next 5 times x is subtracted from. Okay, so as here from, so first here write down 13, then subtract 5 times x, so 5x. Okay, next the number x and y both squared and added. So the first one square of x, that means x square, then square of y, that means y square. Now you have to add these two squares, so write down plus sign in between of them. Next, number 7 is added to 3 times the product of PQ. So product means P into Q, so P into Q means PQ. Then 3 times, that means 3 multiply PQ, so 3PQ. Now plus 7 will be added. 3 times of x is subtracted from the product of x with itself. So here if you find out the product of x with itself, that means x into x. So x into x means x square. Okay. Now subtract here 3 times of x. So that is 3x. So x square minus 3x, that is your answer. Now the last one, sum of the numbers m and n is subtracted from their product. So product means m into n, so mn. Now sum, so m plus n. Okay, that means m plus n subtracted from the product mn. Next one, question number 2. A taxi charges rupees 9 per kilometer, a fixed charge of rupees 50. If the taxi is hired for x kilometer, write an algebraic expression for this situation. So that means here the base price of the taxi, that is rupees 50. Okay, then you have to pay the charge for according the kilometer. किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा. बट जब भी आप टैक्सी बुलाएंगे, टैक्सी में आप उठेंगे, तो वहां पर बेस चार्ज आपको 50 रुपीज देना ही है. फिर किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा. अब यहाँ पर देखिए पर किलोमीटर चार्ज है 9 किलोमीटर, सॉरी 9 रुपीज, और आपको जाना है x किलोमीटर. सो यहाँ पर लिखिए फॉर 1 किलोमीटर charge equal to rupees 9. Then for x kilometer charges equal to 9 into x, that means rupees 9x. Okay, और बेस प्राइस कितना था रुपीज 50 जो आपको देना ही है. सो टोटल यहाँ पर प्राइस हो गया, total price or total charge, that one equal to 9x plus 50. So rupees 9x plus 50, that is your answer. Okay, now next one, sum number 3. Write down the algebraic expression whose terms are, first one here 5a minus 3b and c. Okay, इसका मतलब जो तीनों टर्म आपको दिया हुआ है, तीनों टर्म को मिला के आपको एक algebraic expression लिखना है. बहुत इजी है. जहां पर कॉमा दिया हुआ है, सिर्फ कॉमा को उठा के आपको वहां पर प्लस लिखना है. ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वन 5a कॉमा माइनस 3b कॉमा c. तो इसको हम लिखेंगे 5a. फिर यहाँ पर अगर प्लस बिठाएंगे, सो प्लस इंटू माइनस, दैट मीन्स माइनस. सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3b फिर प्लस c. ओके, सो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. इस तरह से सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सो 5x प्लस 6, दूसरा हो गया. नाउ तीसरा एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस एक्स वाई, देन माइनस एक्स वाई स्क्वायर. सो दैट इज योर आंसर.
इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब सम नंबर 3 का ठीक उल्टा है। यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर टर्म्स को लिखना है, इसका मतलब अलग अलग करके लिखना है। सो 3 माइनस 7x, तो टर्म्स हो गया आपका 3 कॉमा माइनस 7x। यहाँ पर दो टर्म्स दिया हुआ है, एक 3 है और दूसरा माइनस 7x है। साइन को आपको एक साथ ही लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन यहाँ पर 2, फिर दूसरा टर्म्स हो गया माइनस 5a और तीसरा टर्म्स यहाँ पर हो गया 3/2b। ओके, सो कॉमा 2 कॉमा माइनस 5a कॉमा 3/2b। लास्ट वन, फर्स्ट टर्म आपका 3x⁵, सेकेंड वन 4y³, थर्ड वन माइनस 7x², लास्ट वन यहाँ पर 3। ओके, चार टर्म्स। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 5, identify the terms and their factor in the algebraic expression given below। सो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, जो टर्म्स आपके पास दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसके बाद आपको टर्म्स और फैक्टर को अलग अलग से लिखना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन था, फर्स्ट वन -4x + 5y। सो पहले हम टर्म्स लिखेंगे, दो टर्म्स यहाँ पर है, -4x है और 5y। अब दोनों टर्म्स का फैक्टर निकालेंगे। -4x का फैक्टर होता है -4 एंड x, ओके, और 5y का फैक्टर होता है 5 एंड y। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, xy + 2x² y²। ओके, अब दो टर्म्स यहाँ पर है, फर्स्ट वन xy एंड सेकेंड वन 2x² y²। अब फर्स्ट का हम फैक्टर निकालेंगे x एंड y। नाउ नेक्स्ट वन 2, अब यहाँ पर x² दिया हुआ है, x² मतलब 2x होता है और y² y एंड y। ओके, हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3, 1.2ab - 2.4b + 3.6a। तीन टर्म्स यहाँ पर है। सो फर्स्ट वन 1.2ab, सेकेंड वन -2.4b और यहाँ पर थर्ड वन हो गया 3.6a। अब फर्स्ट का फैक्टर निकालेंगे, 1.2 एक फैक्टर हो गया, फिर a और फिर b। नेक्स्ट वन -2.4 हो गया और b, थर्ड वन 3.6 एंड a। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, show the terms and their factors by tree diagram of the following algebraic expression। ओके, जो आपके पास जो फॉलोइंग algebraic expression दिया हुआ है उसको आपको ट्री डायग्राम में लिखना है। ओके, सो सम नंबर 6 यहाँ पर करेंगे। सम नंबर 6 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 8x + 3y²। इसको पहले हम दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स दिया हुआ है, एक 8x और दूसरा 3y²। फिर इसको यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, एक 8 हो गया, दूसरा x हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पर 3 होगा। अब y² के लिए फर्स्ट y एंड सेकेंड y हो गया आपका ट्री डायग्राम। नंबर 2, y - y³। यहाँ पर भी दो टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट वन यहाँ पर है y और दूसरा -y³। सो यहाँ पर y और y³ के लिए ऐसे माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, सो पहले माइनस के लिए हम -1 लिखेंगे, फिर y³ के लिए यहाँ पर 3y लिखेंगे। क्लियर? सो y y y y³ हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है 5xy² + 7x² y। यहाँ पर भी दो टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट वन 5xy², सेकेंड वन 7x² y। सो यहाँ पर हम 5 फिर x फिर y और फिर अगेन y हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पर 7, अब दो x होगा क्योंकि यहाँ पर x² दिया हुआ है और एक y होगा। टी डायग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 4, ab + 2b² और यहाँ पर -3a²। ओके, सो यहाँ पर तीन टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट वन ab के लिए a होगा और b। नेक्स्ट वन 2b², अब इसके लिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, b² के लिए b, दूसरा यहाँ पर b हो गया और यहाँ पर देखिए -3a² है। सो पहला हो गया आपका -3, फिर a और फिर अगेन a। सो दैट इज योर आंसर।
Now next one, sum number 7. Write down the numerical coefficient of each of the following. So -7x, यहाँ पर देखिए x आपका वेरिएबल है, -7 कांस्टेंट, ओके, सो इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो -7, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, -2x³ वाई स्क्वायर, एक्स वाई दोनों ही आपका वेरिएबल है, सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका मतलब ओनली आपको सिर्फ नंबर ही यहाँ पर लिखना है, ओके, कोई वेरिएबल नहीं होगा, सो -2। इस तरह से नेक्स्ट वन 6 एंड द थर्ड लास्ट वन 2/3, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 8, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसका मतलब यहाँ पर जो x दिया हुआ है, x को छोड़ के जो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे फर्स्ट वन -4bx, अगर यहाँ से हम x को निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -4b, ओके। सिर्फ x को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, x को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म्स आपके पास दिया हुआ है और इंक्लूडिंग साइन आपको याद रखना होगा, साइन मत छोड़ना। नाउ नेक्स्ट वन 5xyz, अब यहाँ पर x को निकाल देंगे, सो 5yz, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट -x, आप यहाँ पर x को निकालेंगे सिर्फ माइनस रहेगा, माइनस तो सीधे रख रहे, हम यहाँ पर लिखेंगे -1, ओके। नाउ द लास्ट वन -3x²y, अब यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ से सिर्फ x एक निकालेंगे, ओके, क्योंकि x स्क्वायर में 2x होता है, बट यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब सिर्फ एक x को आपको यहाँ से हटाना होगा, सो -3xy, दैट इज योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, -7xy²z³, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ 7x। जो टर्म आपके पास दिया हुआ है वहां से आपको सिर्फ 7x को हटाना है, सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर -y²z³ हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन -xy², जो टर्म आपके पास दिया हुआ है सेम टर्म है, -7xy²z³, यहां से आपको -xy², तीनों को हटा देना है, तो यहाँ पर रह जाएगा 7 और देन z³, सो 7z³ दैट इज योर आंसर। थर्ड वन आपको यहाँ से x y z तीनों को ही हटाना है, सो -7 हो जाएगा, फिर x चला गया, अब y² है वहां से एक y चला गया तो एक y रह जाएगा, और z³ है वहां से एक z चला गया तो z², सो -7yz² दैट इज योर आंसर। लास्ट वन 7yz² को छोड़ के लिखना होगा, सो माइनस होगा, x होगा और y होगा, -xy, z³ है यहाँ पर z² चला गया तो एक z रह जाएगा, -xyz दैट इज योर आंसर। नंबर 10, identify the terms other than constant and write their numerical coefficient in each of the following expression, okay। other than constant इसका मतलब constant छोड़ के आपको सिर्फ नॉन कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे कौन सा यहाँ पर नॉन कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखिए 3 - 7x, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ वेरिएबल रहता है वो नॉन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर नॉन कांस्टेंट टर्म हो गया -7x। अब -7x में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढना है, सो -7x में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है -7, क्लियर। नेक्स्ट वन आपके पास दो नॉन कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट वन 2x, सेकेंड वन -3x², फर्स्ट वन 2x, सेकेंड वन -3x²। नाउ 2x में जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है दैट इज 2, और -3x² में जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है दैट इज -3, दो आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट 1.2a प्लस 0.ab, दोनों ही यहाँ पर नॉन कांस्टेंट टर्म है, सो 1.2a में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1.2, 0.8 में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 0.8, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 11, identify the terms which contain x, write the coefficient of x in each of the following। अब यहाँ पर देखिए 13y², यहाँ पर कोई x नहीं है, सो x जिसमें है उसका होगा यहाँ पर -8xy, यहाँ पर आपके पास x है,
नाउ कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -8y, x को छोड़ के। नेक्स्ट दो टर्म आपके पास दिया हुआ है 7x एंड -xy², दोनों में ही आपके पास x है। सो 7x में आपका कोफिशिएंट हो गया ओनली 7 और -xy² इसमें कोफिशिएंट हो गया -y²। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x, सॉरी आपको यहाँ पर नेगेटिव को भी लेना होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे -7xyz। अब यहाँ पर x को छोड़ के आपका कोफिशिएंट हो गया -7yz, ओके, -7yz। नेक्स्ट वन 4x²y, यहाँ पर x को छोड़ के 4xy, दैट इज योर आंसर। नाउ नंबर 12, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y², राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -xy², जहां पर y² है, इसका कोफिशिएंट हो गया -x। नेक्स्ट वन 5y², यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया 5। देन यहाँ पर -3xy², कोफिशिएंट हो गया -3x। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए सिर्फ y है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको y² ही ढूंढना है। सो -15xy², यहाँ पर y² है, कोफिशिएंट हो गया -15x। और यहाँ पर 7y² है, सो कोफिशिएंट हो गया 7। ओके, सो दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 13, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है सिर्फ एक ही आपके पास टर्म होगा, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। सो फर्स्ट वन 4y एंड -7z, दो टर्म्स आपके पास दिया हुआ है, सो इट्स बाइनोमियल। नेक्स्ट -5xy², सिर्फ एक ही टर्म है, ओके, सो हो गया आपके पास मोनोमियल। देन x प्लस y माइनस xy, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स आपके पास है, सो हो गया ट्राइनोमियल। ओके, अगेन ab² 5b3a, तीन टर्म्स है, सो ट्राइनोमियल। 4p²q 5pq², दो टर्म से, बाइनोमियल। 2017 एक ही टर्म से, मोनोमियल। फिर यहाँ पर 1 प्लस x² तीन टर्म से, ट्राइनोमियल। नाउ द लास्ट वन, अब लास्ट वन में देखिए यहाँ पर जो आपके पास -7 और +4 दिया हुआ है, -7 और +4 को हम सब्ट्रैक्ट करके -3 लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर नोट दिया हुआ है -7 +4 -3 हो गया, इसका मतलब जो टर्म्स आपके पास हो गया 5x², फिर 3x और फिर -3। अब इस टर्म के हिसाब से और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब के आपको लिखना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। सो यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स है, सो दैट इज ट्राइनोमियल। ओके, सो पहले आपको माइनस करना होगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट वन नंबर 14। Number 14, state whether the given pair of terms is like terms or unlike terms. Okay, it's very easy. देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल देखना होगा, ओके, कांस्टेंट नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल देखना है। जैसे यहाँ पर दोनों में ही x दिया हुआ है, इसका मतलब लाइक टर्म्स। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर y है, सो अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर xy, बट यहाँ पर xyz, सो अनलाइक टर्म्स। m²p, बट यहाँ पर mp², एक में m का स्क्वायर है, दूसरे में m का स्क्वायर नहीं है। एक में ओनली p है और दूसरे में p² दिया हुआ है, इसका मतलब अगेन अनलाइक टर्म्स, दोनों ही सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक z, दूसरे में एक स्क्वायर z², सो अगेन अनलाइक टर्म्स। लास्ट में यहाँ पर pq और यहाँ पर qp, देखिए pq और qp दोनों एक ही बात है। अगर p को q से मल्टीप्लाई करेंगे pq होगा, q को p से मल्टीप्लाई करेंगे pq होगा, इसका मतलब लाइक टर्म्स हो गया। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर देखिए x²y, सो x²y और यहाँ पर -2x²y, दोनों लाइक टर्म्स हो गया। नाउ नेक्स्ट a²b, सो 3a²b एंड -6a²b, लाइक टर्म्स हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2abc और यहाँ पर 4abc, दोनों लाइक टर्म्स हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका दो पेयर है, फर्स्ट वन a²b का पेयर और नेक्स्ट वन abc का पेयर।
अब यहाँ पर देखिए 10 PQ और PQ यहाँ पर है, यस, -7 PQ भी यहाँ पर है और PQ 78 PQ भी यहाँ पर है। ओके, ऑन नहीं है। आप दूसरा कलर यूज करेंगे दूसरे पेयर के लिए। P, यहाँ पर देखिए P कहाँ पर है, 7P यहाँ पर दिखाई दे रहा है और P 12405P। ओके, अब दूसरा भी हो गया। अब तीसरा कलर यूज करेंगे Q के लिए। सो यहाँ पर Q 8Q एक पेयर, 8Q के साथ -100Q और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए P2Q2। सो यहाँ पर -P2Q2 येलो से मार्क करेंगे। यहाँ पर 12P2Q2 हो गया और नहीं है। ओके, आप यहाँ पर लाइक टर्म्स देखिए, यहाँ पर यस न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर ब्लैक से करेंगे। सो यहाँ पर -23 और 41 हो गया, -23 41। अब नेक्स्ट वन P2 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर -5P2 दिया हुआ है और यहाँ पर 701 P2 दिया हुआ है। ओके, सो 5P2 एंड 701 P2। नाउ द लास्ट वन P2Q। अब यहाँ पर देखिए P2Q है, 13 P2Q और यहाँ पर भी P2Q है। सो यहाँ पर लाइक टर्म्स का जो पेयर होता है वो निकल गया। नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 16। सम नंबर 16 यहाँ पर देखिए, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन x। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए जो टर्म्स, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 7 8, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 8 है। सो डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दैट इज 8। आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। नेक्स्ट वन 3 - 2x, इसका मतलब पावर 1 है, सो डिग्री 1। यहाँ पर देखिए -2, अब -2 यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, -2 इंटू 1, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं -2 इंटू x टू द पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 इसका मतलब 1 होता है। ओके, सो -2 इंटू x टू द पावर 0। सो यहाँ पर पावर 0 है, सो डिग्री होगी आपके पास 0। लास्ट वन 1 - x² पावर 2, सो डिग्री 2। नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 17। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, लास्ट सम में सिर्फ एक ही वेरिएबल आपके पास था, बट यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल एक साथ होता है तो दोनों वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर को आपको ऐड करना होगा, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डिग्री लिखना होगा। जैसे मान लीजिए 3x², यहाँ पर पावर 2 दिया हुआ है, बट यहाँ पर 5xy², x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, सो 1 + 2 3 हो गया। अब यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर पावर 3 हो गया, हाईएस्ट कौन सा है 3, सो योर आंसर इज 3। क्लियर। नेक्स्ट वन xy², यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर पावर 4, हाईएस्ट कौन सा 4, सो डिग्री हो गया 4। लास्ट वन यहाँ पर भी 3, बट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, हाईएस्ट कौन सा 5, सो आंसर हो गया 5। वेरी इजी। ओके, so now the last one. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So here some number 18. State true or false. If 5 is constant, y is variable, then 5y and 5 plus y are variables is true. क्योंकि देखिए अगर y वेरिएबल है, इसका मतलब y का वैल्यू अगर चेंज होगा, सो 5 इंटू वाई उसका भी चेंज होगा। मान लीजिए y का वैल्यू 1 है, सो 5 इंटू 1 5। मान लीजिए y का वैल्यू 2 हो गया, 5 इंटू 2 10। इस तरह से 5y का वैल्यू चेंज होता ही रहेगा अगर y का वैल्यू चेंज हो गया। नेक्स्ट 5 प्लस y, सेम, इफ y इक्वल टू 1 देन 5 प्लस 1 6, इफ y इक्वल टू 2 5 प्लस 2 7, चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट 7x has two terms 7 and x। ओके, मान यहाँ पर 7x has two terms 7 and x, that one is false, क्योंकि 7x खुद ही एक टर्म्स है। ओके, अगर 7x से हम 7 और x को अलग करेंगे, उसको टर्म्स नहीं बोलते, उसको फैक्टर बोलते हैं। ओके, इसका मतलब 7 and x are the factor of 7x, but 7x itself are terms, is a single term। Okay, now next one, 5 plus xy is a trinomial, no, it's binomial, so again false। 7a into bc,
is a binomial? No, because after multiplication it will be 7abc, so it's a monomial, so false. Last one, 7x cube, sorry, fifth one, 7x cube plus 2x square plus 3x minus 5 is a polynomial. Yes, it's a polynomial because more than 3 terms it's called polynomial. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद ही पॉलिनोमियल आता है. इसका मतलब 4 टर्म्स होगा या 5 टर्म्स होगा, सो पॉलिनोमियल. नाउ नंबर 6, 2x square minus 3 by x is a polynomial? No, it's a binomial, so false. Last one, coefficient of x in minus 3xy is minus 3? No, it's minus 3y, so यहाँ पर भी false होगा.